अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है आई स्टेट एट 85 ईयर ओल्ड अंबिका निवास प्लेस एंड एक्सप्लोर्ड मूली इन गुजरात। जो भी से आज की वीडियो में महसूस है। पता है, ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं। इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग द राइट थिंग्स दैट मेक यू फील मोर अलाइव, थिंग्स दैट टच योर हार्ट। और आज मैं जहाँ हूँ, इट्स मेकिंग मी फील all the right things. I am at a former princely state of Gujarat, living in a royal palace with the royal family. Welcome to Ambika Niwas Palace in Muli. Ambika Niwas Palace is the pride and heritage of Moli. It's an ancestral palace जो 1930s में बनाया गया था and today at present is housed by the 24th generation of the royal family of Moli. This ancestral palace has recently been converted into a boutique heritage hotel for guests to get a glimpse into the royal life. Totally living up to my Maharani moment. You know, you've got to keep in mind कि जब ये पैलेस बना था, ये एक होटल बनने के लिए नहीं बना था, ये बना था यहाँ के रहने वाली रॉयल फैमिली के लिए, उनके घर की तरह। अंबिका निवास पैलेस में हैं 10 पैलेस रूम्स और 2 स्वीट्स, बट ऑल द रूम्स हियर हैव अ रीगल ब्यूटी अटैच्ड टू इट। वाओ! तो ये है यहाँ का पैलेस स्वीट। लार्ज विंडोज, ह्यूज डोर्स, ओपन वेंटिलेशन, ये सब इसलिए क्योंकि ये उस वक्त में बना था जहाँ लोग डिपेंडेंट थे ऑन नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट एंड विंड। अब तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। देयर इज़ एयर कंडीशनिंग, देयर इज़ अ फैन, देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बट आई हैव टू से द रॉयल टच इज स्टिल इंटैक्ट। मेरे पैलेस स्वीट से मैं जा सकती हूँ इस ओपन कोर्टयार्ड में ऑन द फ्रंट साइड एंड ऑल्सो ऑन द बैक साइड। Wow, quite a royal feast right in front of me. So Muli comes under the Kathiawar region, which is a part of Jhalawar, and what I have in front of me is a traditional Kathiawari cuisine. I can see dhokla right there, and can a trip to Gujarat ever be complete without dhokla? There are 2 different types of ghatia as well. There is aloo bhajia and there is gawar ki sabzi, my favorite, I love it. There is aloo garlic, there is safe tomato. Now that's something I've never tried, but I'm looking forward to it. There's khichdi, Gujarati curry, and can a royal cuisine ever be complete without some mutton curry? This food is best paired with rotla, roti, as well as papad, and I can't wait to end my meal with suji ka halwa. यहाँ की रॉयल फैमिली अब भी यहाँ रहती है and you can always go and interact with them to know more about the history. So since how many years have you been living in this beautiful palace? Well, I think from the time this palace was built by my great-grandfather in the 1930s, the family has been residing here, and it's been 3 generations now. I can share with you our family history that we have. Wow, so there's actually a lot to see in Muli. Yeah. Well, other than the Ambika Niwas Palace, there's so much to explore here. I'm quite intrigued by the stepwell. Can we go here? How far is it from here? Yeah, this is not very far, about 15 minutes from the palace. We can definitely go and okay. Visit. Let's go. Can't wait to explore Muli.
मूली सुरेंद्र नगर का एक छोटा सा गांव है जो विजिटर्स के लिए कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है और मैं जा रही हूँ यहाँ के कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस को देखने, स्टार्टिंग विद राजबाई नीवाव स्टेपवेल। कहा जाता है कि गुजरात स्टेट में करीबन 100 से ज्यादा स्टेपवेल्स हैं जिनका लोकल टर्म है वाव। ये स्टेपवेल स्मॉल विलेजेस में बहुत मशहूर है बिकॉज पानी प्रोवाइड करने के अलावा दे ऑल्सो एक्ट एज कूल सैंक्चुरीज फॉर विलेजर्स एंड विजिटर्स ऑन अ हॉट डे। और ये कोई आम स्टेपवेल नहीं है। This stepwell was actually built about 700 years ago and it goes 7 floors underground. I'm just wondering how this was built, what technology was used. You look at the carvings, you look at the grid that was formed on every floor through which you could tell what the water level was and to get access to the water, which was eventually used for either irrigation or for water supply to the neighboring villages. सुरेंद्र नगर के रिलीजियस और स्पिरिचुअल साइड की बात करें तो यहाँ मूली का स्वामी नारायण टेम्पल इज द सेकंड ओल्डेस्ट स्वामी नारायण टेम्पल विद अ वुडन हवेली। ये मंदिर मेनली डेडिकेटेड है राधा कृष्ण को, जहाँ दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। मूली में इस मंदिर की काफी मान्यता है। So we've come to a beautiful village called Bastadi, where I'm going to introduce you to Surendranagar's rich craft. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वीविंग प्रोसेस की which is तंगालिया। हम आ गए हैं जहाँ भाई हाउस, who is known to be a master weaver. तंगालिया एक पॉपुलर वीविंग प्रोसेस है जो मूली और सुरेंद्र नगर के रूरल एरियाज में यूज किया जाता है। इन दिस मेथड टाइनी डॉट्स आर ट्विस्टेड अराउंड अ नंबर ऑफ रैप थ्रेड्स, गिविंग इट एन इफेक्ट ऑफ बीड एम्ब्रॉयडरी टू द फैब्रिक। The artisans making this are known to have high skills and an eye for accuracy. यहाँ शॉल्स, दुपट्टे और साड़ी सब इसी तंगालिया मेथड से बनाया जाता है। टांगलिया एक वैसा चीज़ है जो एम्ब्रॉयडरी नहीं है, जो पूरा हैंडमेड है, जो दोनों तरफ सेम रहता है। जो ऊपर होता है सेम नीचे होता है। एम्ब्रॉयडरी जैसा नहीं, ऊपर अलग दिखता है नीचे अलग दिखता है, वैसा नहीं होता है। टांगलिया दोनों तरफ सेम होता है। केम छो। पटोला इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पटोलू। ये एक डबल वीविंग टेक्निक है जिसमें सिल्क फैब्रिक का यूज किया जाता है। द इंटीग्रेट डिजाइन्स एंड क्वालिटी मेक्स इट वेरी एक्सपेंसिव एंड इज वोर्न बाय दोज हु कैन अफोर्ड हाई प्राइसेस। पटोला साड़ीज रॉयल लेडीज का ट्रेडमार्क था और तकरीबन 400 से 500 कारीगर आज भी इस वीविंग मेथड को यूज करते हैं। Well, all I can say is that these master weavers are not only very passionate and patient, they are also very, very creative. They can create anything into a beautiful piece of art. Now, all they need is some recognition from you guys. सुरेंद्रनगर शहर बुगावो नदी के बैंक्स पे लोकेटेड है। दिस रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी टू द साबरमती रिवर और यहाँ का नायका डैम बहुत ही फेमस है फॉर इट्स वाटर सप्लाई एंड फ्लड कंट्रोल इन दिस रीजन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस इज। So I'm going to be ending my day 1, which is a power-packed day of exploring Muli, just by sitting at the Naika Dam, which is so beautiful. Sound of water, this breeze, green grass, lots of open and fresh air. I'm just wondering, if day 1 in Surendranagar was so beautiful, how gorgeous will my day 2 be? So I would like you to stay tuned to my next video coming up very soon. Until then, it's me, Kamya Jani from Curry Tales, signing off. जी गाइड्स, तो ये था मूली इन गुजरात। तो आपने देखा कि वहाँ पे
जो रॉयल फैमिली के जो लोग रह रहे थे, और क्या ज़बरदस्त इनका पूरा विला, पैलेस, अम्बिका हाँ पैलेस। बिल्कुल, वो बहुत एंटिक इनके अंदर फर्निश थे, चीज़ें थी, खाना पकाने की इतनी सारी डिशेस थी, और जिस तरह ये खा रहे थे काठियावाड़ी कह रहे थे ये सारे डिशेस है। काठियावाड़ी गुजराती मिक्स, मतलब कि जितनी भी डिशेस थी उन्होंने अपने सारे सामने वो सब हाँ सजा दिया था, और जिस तरह ये रखी हुई थी डिशेस इतनी मज़े मज़े की, तो वो दिखने से ही लग रही थी कि बहुत आला बनी हुई थी सारी चीज़ें। और वही चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी हमने खाई है, जिस तरह वो फाफड़ा, ढोकला, गाठिए और क्या था गवार। लेकिन और देखो ये तो वो डिशेस होती है, लेकिन ये तो स्वीट्स में ज़्यादातर आती है ना। स्वीट्स में तो वो थे ना, सूजी का हलवा सब्जी, था, ठीक है, जैसे मटर की, और उन्होंने एक और unique मुझे चीज़ हाँ बताई कड़ी, कि मटन कड़ी। मटन कड़ी है यहाँ पे भी, ये यूनिक है। खाई है, लेकिन घर में हमारे नहीं बनी है, बाहर खाई है। हाँ, जो अपना गाजर की सब्जी और ये सारी चीज़ें देखो ये यूनिक थी। तो ये सारी चीज़ें हमने अंबिका पैलेस के अंदर देखी, और अंबिका हाँ। पैलेस अच्छा, ये मैं सोच में पड़ गई यानी कि ये जैसे क्या इतनी सारी डिशेस इनके घर में क्या रोज़ाना बनती होगी। हमारे घर में ज़्यादा अगर बहुत वो कर ले कि कभी कभी ऐसे रोज़ाना तो 1 या 2 डिश में, कभी कभी 3 डिश या 2 डिश बस। फैमिली है, उनके पास इतने सारे शेफ्स होंगे, ऐसी बात है। हाँ, तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती होगी। ओके, तो वो रॉयल फैमिली है, वो एक मग में 50 डिश भी उनको बोलो ना तो वो सामने पेश करेंगे। हमारे घर में मम्मा भाभी यही बनाते, 1-2 डिश बन जाए बस, वो भी इनफ है। रोज़ क्या बनाना है व्हाटएवर, ये चीज़ें हर घर का है, वो तो चलता रहता है निज़ाम जब तक जिंदा है, मतलब और चलता रहे। 1930 से देखो उनके दादा परदादा, उनकी पुश्तों की पूरी तस्वीरें उन्होंने हाँ बिल्कुल, मतलब दिखा दी कि ये मेरे दादा थे, ब्लैक एंड परदादा वाइट थे। ज़माने और से। ये इस तरीके से यहाँ पे मतलब आए मूली के अंदर, फिर उन्होंने ये सारी ये चीज़ें मतलब अपनी एक मतलब होटल नुमा, मतलब उन्होंने इतना बड़ा हाउस बनाया अपना। हवेली कह लेंगे हम, हवेली कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हवेली हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब कि लुक बिल्कुल वैसा ही आ रहा था। हाउस तो था लेकिन हवेली टाइप का मतलब उन्होंने बिल्कुल वो बनाया। और इसके अलावा आपने देखा कि मंदिर वहाँ पे 15 मिनट्स के मतलब नियरेस्ट, मतलब ज़्यादा इतनी दूर नहीं था, और वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ था। मतलब वहीं पे वो भी बहुत जाके खूबसूरत था। कढ़ाई वगैरह का काम चल रहा था, जो रॉयल फैमिली पहनना पसंद करती अच्छा, थी। कढ़ाई का तो मैं खुद हैरान रह गई कि हाथों से बना रहे, आप हाथों से बैक बुनना। साइड से भी पहन सकते हो और इस साइड से भी। हाँ। ऐसी काफ़ी टी शर्ट से फ्रंट और मेरी बैक मतलब कि सेम। बाहर से लाई थी, तो वो जैसे आप उल्टा भी पहन सकते हो, बिल्कुल सेम छपाई है, हाँ। और आप सीधे भी पहन सकते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है। नहीं, इसमें मुझे वो याद आ गया, उल्टा वड़ा पाव। वही बात होगी, चाहे इधर देखो उधर देखो, बात तो वही आएगी ना। उल्टा बड़ा पाव, ये ड्रेस में बड़ा पाव कहाँ से आ गया? सूरत में मिलता है ना उल्टा वड़ा पाव। उन्होंने बोला उस टाइम में मैं भी शॉर्ट रह गया था, उल्टा वड़ा पाव, चलो देखते क्या है उसमें। तो इसी तरीके से ये मतलब कि बुनाई का काम और ये सारी चीज़ें ना चल रही थी वहाँ पे, और बहुत मतलब कि अच्छा जो फेसिस बना रहे थे और महल टाइप का वो बुनाई से मतलब उनको सारा काम कर रहे थे। तो ये बड़ा एक व्यू बहुत अच्छा एंटिक लुक आ रहा था, बिल्कुल। सुकून मिलता है ना लाइफ को अपनी। जैसे काम्या जानी जी वहाँ पे गई सी साइड पे, और उन्होंने व्यू वहाँ का देखा, वाटर, साउंड ऑफ वाटर, उन्होंने मतलब कि पानी की आवाज़ भी इतनी खूबसूरत आती है, और मतलब कि आप अगर अकेले हो ना, कोई शोर शराबा नहीं है, और पानी की वॉइस, और ये सुकून मिलता है आपको मतलब कि तरोताज़ा कर देती है, आपकी बॉडी फिट कर देती है, आपको हर चीज़ में आप टेंशनों से बाहर आ जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इजाज़त चाहेंगे जी व्यूअर से। बिल्कुल, आज के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।